प्रेमरामि राधां मधुरस्मिताख्यं वदामि राधां करुणभराद्रां ततो ममान्नस्ति गतिर्नपाति। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। सर्वाग्रे मधुपाद पद्मो नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद वास्तुकरो सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्लोक गोस्वामी महाराज ओम नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी। I offer unlimited Dandavat Pranam to my Guru Pad Padma. After that, Nityalila Pravishtam Vishnupada Stottara Satya Shri Srimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj Yom Manchaste Virajman Satirtha Vaishnava Maharaj परम स्नेहशीला मातृवृंद समस्त वैष्णव वैष्णवी चरण हमारे यथायोग दंडोत प्रणाम सत्कार हो। टुडे इज वेरी इंपॉर्टेंट डे। आज बहुत अच्छा दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इन आवर स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स वेर इज हरि कथा देयर इज ऑल तीर्था। जिस जगह पर वैष्णव उपस्थित हैं वही तीर्थ है। यू नो रिवर गंगा सरस्वती एंड कावेरी। वेर इज भगवान नाम एंड कीर्तन देयर इज ऑल तीर्थ। कावेरी गंगा सरस्वती यमुना। All tirtha is there, like that Ganga, Yamuna, Saraswati. जीव का जब भाग्य उदित होता है तब साधु संग प्राप्त होता है। If you listen Bhagavad Gita, then you get the God. Where is if Sukriti will come, then we will get the Sadhu Sangha. Then our interest will come by the mercy of sadhu. Then we will get the God. This is the our spiritual this is our scriptures said. हमारे आध्यात्मिक शास्त्रों में यह बात बताई गई है। One श्लोक is here. Srimad Bhagavatam 3rd skand discussed in Kapil Devati. Himself, Bhagwan Kapil Dev, giving the instruction to his mother. इस संसार में लोग अनेक सत्कर्म करते हैं। इन दिस मटेरियल वर्ल्ड एवरीबॉडी डूइंग मेनी
सत्कर्म. के दान करे যার বস্ত্র Like they are donating the poor people. They give an cloth, ঠান্ডার সময় কম্বল দান and in the করে cold time they will give the blanket. অন্ন দান যার ভোজনের ব্যবস্থা নাই They are giving the food. তাকে ভোজন করায় অন্ন দান করা If anybody have no food, then they giving the এই food. সকল দানগুলো Food. কি বলা হয় They are donating the food, ক্ষণস্থায়ী বলা হয়। cloth, etc. ক্ষণস্থায়ী মানে প্রতিদিন সমান। যেমন আপনাকে যদি একটা কাপড় Our life not more in this material world. ওই কাপড়টা আপনি কতদিন তো ব্যবহার করবেন 5 মাস 6 মাসের পর কাপড় নষ্ট হয়ে যাবে কি আবার 5-6 মাসের পরে আবার একটা আপনাকে কাপড় দিতে হবে After 4 and 6 months, again need blanket. If you give the food তাহলে আপনাকে ভোজন 1 time, 2 time, 3 time, then after that you have required the food. আবার 3-4 ঘন্টা This is not permanent solution actually. পরে আপনার After 3-4 hours, again we need food. এইজন্য এই সকল দানগুলিকে বলা হয় ক্ষণস্থায়ী দান। That donation called কিন্তু আমাদের temporary. দানের কথা বলা হয় In our spiritual books, দানটা হলো চিরন্তন নিরন্তর শাশ্বত। what is the actual donation? সেই চিরন্তন নিরন্তর শাশ্বত দানটা কি হলো What is the permanent donation? Shrimad Bhagavad Kathamrit, this is the permanent donation. Tavo Kathamritam Tapta Jeevanam Kavibhiriditam Kalmasapaham Shravana Mangalam Shrimadatam Bhuvi Girdanti Te Bhuridachana Tavo Kathamritam Tapta Jeevanam बिभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गीडन्ति ते भूरिदा जना. गोपी गीत के मध्य में बोला गया है. In the Gopi Git they speak. Gopis in the separation of Krishna, they write this. That is called Gopi Git. Gopis sitting under the Bansivat. সেই সকল গুণাবলীকে অত্যন্ত সুসংবদ্ধ ছন্দের দ্বারা তারা কীর্তন করেন। The Gopis did Kirtan. তারা অনুভব করেছেন That is called Gopi Git. কৃষ্ণকে যদি আমরা খুঁজতে যাই খোঁজ করতে If we are searching the Krishna, আমরা যত কৃষ্ণের পিছনে যাবো সেই কৃষ্ণ আরো দূরে চলে যাবে। if we will go behind of Krishna, then he will go again স্বভাব রয়েছে very far. যদি কৃষ্ণকে গুণকীর্তন করে If we will do Krishna's Leela এসে Kirtan, we chant his Leela and Kirtan. স্বামী বৈকুণ্ঠে So Krishna says to Narad, Naham Vaisami Vaikuntha, na yoginam hirdesva yatra gayanti madbhakta tatra tishtham naradaha. ভগবান নিজে বলছেন Bhagwan Krishna he said to Narad, ভক্ত Madbhakta, অনেক জীবন who, where is my devotee? They speak or Harikatha, কথা যদি আমরা কীর্তন করি there I will stay. সঙ্গে সঙ্গে Swam God is saying. ভক্তির সহিত করি। তাই গোপীগণ বিচার করলেন Then Gopi is thinking, এই জঙ্গলের মধ্যে খুঁজলে তাকে পাওয়া যাবে না we are in forest, we will search to Krishna, then we cannot get. যত তার পিছে দৌড়ুন If we will do Leela and Kirtan of Krishna, then he will come. পাওয়া যাবে না এই জন্য বলা হয় যে তাকে পাওয়ার উপায়টা কি Hey, you translate English actually, I forget. I am translating Hindi. চিন্তে ন চ যুগে নেচ মদ্ভক্ত যত্র গায়ন্তি তত্র হে নারদ हे नारद, আমি বৈকুণ্ঠে সদা সর্বদা हम वैकुंठ में सदा सर्वदा नहीं रहते हैं. I don't stay in Vaikunt and I don't stay in Yogi's heart. और ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ. तो where we stay?
मद भक्त यत्र गायन्ति, जहाँ पर मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं। वेयर माई डिवोटीज अथवा भक्तगण डू और कीर्तन, महिमा कीर्तन करे, इफ दे डू माई कीर्तन देन आई विल हियर। जहाँ पर हमारे भक्त हमारा कीर्तन करेंगे हम वहीं पे होंगे। भगवान ने नारद जी को ये बात कही। भगवान निजेर महिमा निजे শুনিতা, সেটা কি করে হয় না ভক্তের भगवान खुद की महिमा, তখন ভগবানের महिमा अपना अपने यदि भक्त की महिमा का वर्णन करेंगे, ग्लोरीफाई करेंगे, तो भगवान की महिमा का कीर्तन गुण अपने आप हो जाएगा। सो कृष्णा इज सेइंग, सो लॉर्ड इज सेइंग, यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ पर मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं वहाँ पर मैं रहता हूँ। कृष्णा इज सेइंग लाइक दैट। देन गोपियों ने क्या किया? व्हाट डिड गोपीज? दे केम नियर द बैंक ऑफ यमुना and they did kirtan of Krishna. Okay, Radhakanta Didi, please do. Radhakanta Didi, please do in English. कृष्ण क्या कर रहे हैं? What doing Krishna? कालिया को मार दिया और इंद्र के अभिमान का भी ध्वंस कर दिया। इंद्र ब्रजवासियों को मारना चाहते हैं, लेकिन भगवान ने क्या किया? उनको बचाया और गिरिराज गोवर्धन को धारण किया। कृष्ण उस जगह पर उपस्थित हो गए। संत महात्मा निकटे থেকে এই কথাগুলো স্মরণ করতে শ্রবণ করতে, संत महात्मा के निकट कथा को श्रवण करना है और स्मरण करना है, इसे कहते हैं साधु संग। चैतन्य चरितमृत में क्या कहा? साधु संग सर्वशास्त्र के लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। लव मात्र मीन्स एक सेकंड का 11वां भाग का एक भाग, दैट इज का लव मात्र है। इसको इतने समय के लिए भी साधु संग करता है तो भगवान को प्राप्त कर लेगा। साधु संग सर्वशास्त्र का है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। सर्व सिद्धि को गोविंद के चरण में, भगवान के चरणों को प्राप्त करना वास्तव में यही सर्व सिद्धि है। इस जगत में लोग अनेक प्रकार की रीति सिद्धि करते हैं, मंत्र तंत्र आदि सिद्धि करते हैं, किंतु हमारे शास्त्रों में बोला गया है सर्व सिद्धि भगवान के चरणों को प्राप्त करके होगा। If you will get the lotus feet of Krishna, then that is called सर्व सिद्धि। भगवान के श्री चरणों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उसके लिए आवश्यकता है साधु संग की। हाउ वी विल गेट द लोटस फीट ऑफ कृष्णा? वी नीड साधु संग। वेशभूषा देख करके किसी को साधु नहीं कह सकते। दुष्ट व्यक्ति तिलक धारण कर ले, गले में तुलसी माला धारण कर ले, पॉकेट मार, पिक पॉकेटर्स, पॉकेट मार, तिलक धारण कर ले और तुलसी धारण कर ले, तो क्या वो साधु है? नहीं, वो साधु नहीं है। वास्तव में साधु का क्या लक्षण है? कैसे पता चलेगा कि यह साधु है? हाउ वी कैन अंडरस्टैंड ही इज साधु, ही इज नॉट साधु? जो निज साधन करता है, भगवान की आराधना करता है,
who is doing sadhan আরাধনাতে সহায়তা করে, হ্যাঁ? और दूसरे को आराधना करने की सहायता करता है, उसे कहा गया साधु। ভগবান, সেই ভগবানকে যিনি আশ্রয় করেন, তিনি বলেন, इसलिए भगवान का आश्रय करना है। এই জগতে অনেক তো সাধু इस जगत में अनेक साधु दिखलाई देते हैं, শাস্ত্রের মধ্যে বলা হয়েছে लेकिन वास्तव में शास्त्रों में बोला गया है कि साधु कौन है, हुई साधु কৃপালু, অক্লিদ, সত্যসংসার, বদান্য, कृपालु, दयालु, মৌনি, मौनी। এইসব হচ্ছে 26টা গুণ তার থাকে। 26 गुण होते हैं। বৈষ্ণবের কত গুণ? वैष्णव के कितने गुण? 26, 26, 26टा गुण, 26। বৈষ্ণবের 26টা গুণ থাকে। वैष्णव के 26 गुण होते हैं। না হলে অসাধু, ना हवे असाधु, একটা হচ্ছে সাধু আর একটা হচ্ছে সাধু। वनिज साधु, वनिज साधु। বলছেন কি সাধু সঙ্গ তো করতে হবে, साधु संग तो करते हैं, সাধু সঙ্গ করতে হবে। কোন সাধু সঙ্গ করতে হবে আর কোন সাধু সঙ্গ করতে হবে, তাই শ্রীমদ্ ভাগবতে বলে নির্মত্সরা নাম, कौन साधु संग करता है? নির্মত্সর সাধু গণে সঙ্গ করতে হবে। নির্মত্সর বুঝেন? निर्मत्सर समझते যার हैं হৃদয়ের মধ্যে কোনো जिसके हृदय में किसी तरह का छल कपट ना हो, যার হৃদয়ের মধ্যে কোনো মৎসরতা নাই, जिसके हृदय में किसी तरह का कोई मत्सरता नहीं हो, कोई छल कपट नहीं हो, উৎকর্ষতা দেখে, যার হৃদয়ের মধ্যে जिसके हृदय में उत्कर्षता हो, দেশ হয়, ঈর্ষা হয়, जिसके हृदय में यदि द्वेष है, এর মৎসর। उसे कहा गया है मत्सर। निर्मत्सर जिसके हृदय में এগুলো দেশ ভাব থাকে না। कोई द्वेष भाव नहीं हो। যেমন অনেক লোক রয়েছে আপনার ঘরের কাছে আর একটা কেউ ঘর তৈরি করে, সেই উঁচু ঘর করে, अपने घर के पास में कोई छोटा घर और कोई बड़ा घर करे হৃদয়ের মধ্যে কি হয়? तो हृदय में क्या होगा? ईर्ष्या होती है। হ্যাঁ हम्म, বললেন ঈর্ষা জন্মায়। ঈর্ষা। আমার থেকে সে উপরে চলে গেছে। তার পাটা ধরে কি করেন? ईर्ष्या होने लगता है जब हमारे घर के बगल में कोई बड़ा घर बनाने लगता है। মৎসরতা। इसे कहा जाता है मत्सरता। অ্যাকচুয়ালি নির্মৎসর, এই মৎসর एक्चुअली निर्मत्सर और मत्सरता, মাছ থেকে শব্দ হয়েছে। মৎসর শব্দ। मत्सर, निर्मत्सर। অনেকগুলো মাছ রয়েছে, মাছ যখন ছোট ছোট থাকে, আবার বড় বড় মাছগুলো ছোট ছোট মাছগুলো খেয়ে ফেলে। কেন? সেই মাছগুলো জানে যে এটা বড় হলে আমাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। প্রতিদ্বন্দ্বী জানে? ডক্টর নিস। এই জন্য ওই মাছগুলো কি করে? ছোট ছোট মাছগুলোকে ঠিক তদ্রূপ এই সংসারের অনেক লোক রয়েছে যারা ঈর্ষা পরায়ণ, इस संसार में अनोख लोग रहते हैं। ঐশ্বর্য বা উৎকর্ষতা দেখে हृदय মধ্যে যার किसी के ऐश्वर्य और उत्कर्षता को देखते हैं तो उनके हृदय में जलन होता है। हिंसा, हिंसा परायण जो है वास्तव में वही साधु है। আর নির্মত্সর निर्मत्सर जिसके हृदय में किसी प्रकार का দোষ দেশ হিংসা किसी प्रकार का द्वेष, हिंसा नहीं हो, বলা হয় নির্মত্সর। दैट इज कॉल्ड निर्मत्सर साधु। निर्मत्सर राम साधु। বলা হলো কি? সাধু সঙ্গ করতে হলে কোন সাধু? নির্মত্সর সাধু বলে। कौन साधु? निर्मत्सर साधु। मत्सर परायण नहीं, निर्मत्सर साधु সঙ্গ করতে হবে। का संग करना चाहिए। তাদের মুখারাবিন্দ থেকে उनके मुखारविंद से कथाओं को श्रवण करना चाहिए। শ্রবণের কথা বলা হয়। এই জন্য বলেন সতাং প্রসঙ্গাৎ इसलिए बोला गया सताम प्रसंगा मम वीर संबदो, অত্যন্ত দৃঢ়, अत्यंत दृढ़ता के साथ তো শক্তিশালী কথা শ্রবণের কথা বলা হয়। अत्यंत शक्तिशाली कथा श्रवण करना কথা তো चाहिए। শক্তিশালী, भगवान की सारी कथाएं तो शक्तिशाली हैं। কোন কথাটা ভগবানের অশক্তি? भगवान की कौन ऐसी कथा है जिसमें शक्ति नहीं है? তথাপি শাস্ত্রের মধ্যে বলা लेकिन হয়েছে, फिर भी शास्त्रों में बोला गया है কোন কথা ভগবানের কথা শুনতে হবে? রাসলীলার কথা অবশ্যই বলা হয়। भगवान के रासलीला की कथा बहुत शक्तिशाली है। श्रद्धान्वित अनुसन्नाद वर्णे ततो श्रद्धा के साथ कोई यदि श्रवण करे पुदिरप्प कामो ये लोग आपको समस्त प्रकार की काम वासनाएं नष्ट हो जाएंगी। है। श्रीमद् भागवतेर मध्य श्रीमद् भागवत के मध्य में ये श्लोक बोला गया है। विकृतम बधु इदं च विष्णु सुदेव
सुखदेव गोस्वामी पाद ने कहा कि स्वयं शिव भगवान श्री कृष्ण जो सभी जीवों के हृदय एक मिनट, प्रभु जी का फोन आ रहा है, एक मिनट। रासलीला की कथा ऋषि के संत से श्रवण करना चाहिए। यदि आपको रोग हो गया तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। किस डॉक्टर के पास जाना है? अगर रोग, किस डॉक्टर के पास जाएंगे? सब डॉक्टर के पास जाने से होगा नहीं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर होगा। आप साधारण डॉक्टर के पास जाएंगे, यदि मोतियाबिंद हो गया है तो आपका काम होगा नहीं। इस डॉक्टर के पास जाना है जो आँख का स्पेशलिस्ट है, दैट इज कॉल्ड आई स्पेशलिस्ट। हमें आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। नहीं तो आप बोलेंगे कि हमारे गांव में एक डॉक्टर रहता है, उसके पास चले जाएंगे। क्या करता है, कुछ दिन हॉस्पिटल में काम करता है कंपाउंडर का, तो इंजेक्शन देना सीख लेता है और वो लोग फिर अपना दुकान खोल लेते हैं। एक्चुअली दैट इज नॉट डॉक्टर। ऐसे डॉक्टर के पास जाने से होगा क्या? नहीं होगा, समय खराब होगा, समय नष्ट होगा। तो कहाँ पर जाना पड़ेगा? आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ठीक उसी तरह किस साधु के पास जाना पड़ेगा? जो साधन भजन कर रहे हैं, जिन्होंने अनुभव किया है, अनुभूति किया है, जिसकी अत्यंत दृढ़ श्रद्धा है। इस कान से सुनिए, उस कान से निकाल दें। मैं देवी ने हमें कितनी कान दिया है? 2 कान दिया है, दूटे। एक कान से सुने, एक कान से निकाल दिए। ऐसे होगा नहीं, इसलिए बोल रहे हैं क्या? श्रवण का फल क्या है? केवल सुनने से होगा नहीं, उसको मनन करना पड़ेगा। उसको मनन करते रहिए, केवल श्रवण करने से नहीं होगा। अभी श्रवण कर लिया और एक कान से और दूसरे कान से निकाल दिया। कानों से श्रवण करके हृदय में जाना चाहिए। है यूलेशन धारी कथा। अरे बस सुन, प्लीज सिट डाउन। इतिहास में विक्रमादित्य का नाम सुना होगा। विक्रमादित्य की सभा में 9 रत्न थे, जिसे 9 रत्न बोला गया। कालिदास इत्यादि बहुत सारे 9 रत्न थे, उसमें कालिदास सर्वश्रेष्ठ थे। एक दिन विक्रमादित्य सभा में बैठे हुए थे। 8 रत्न थे और एक नहीं थे। एक कपालिक साधु आया। कपालिक साधु का मतलब कि बहुत लाल कलर का वस्त्र पहनते हैं, गेरुआ वस्त्र। हमारे वस्त्र को क्या बोला गया है? गेरुआ वस्त्र। जो कपालिक साधु हैं, जो शमशान में रहते हैं, तंत्र मंत्र साधन करते हैं, मृत शरीर के ऊपर रहते हैं, उसे कहा गया है कपालिक साधु। एक खोपड़ी लेके आए वो।
उन्होंने कहा मैं आया हूँ कि विक्रमादित्य के सामने सब लोग ब्राह्मण हैं, आप अपने किसी पंडित को आदेश दीजिए। ये जो व्यक्ति का मैं खोपड़ी लेके आया हूँ, ये पंडित था कि मूर्ख था, इसे बताओ। আপনারা বলতে পারবেন এটা মাথা 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 খুলে দেখে আরে কবে কে মরে গেছে আজকে कब कौन मर गया है क्या पता, কোথায় কে মরে গেছে কি করে জানবেন? कैसे पता चलेगा कि कौन क्या था। জানতে পারবেন মোটা খুলে দেখে কি বলছে। কিন্তু এই কাপালিক সাধু কাপালিক সাধুগুলোকে বলা হয়, তাদের আবার বলা হয় অগরদানি সাধু বলা হয়। कपालिक साधु, अवगढ़दानी साधु। অগরদানি অত্যন্ত जो है তারা মানে তেজস্বী। अत्यंत तेजस्वी। হ্যাঁ বেশি একটু কথা বলে আমার গলা কেটে দেবে। হ্যাঁ बहुत মানে अगर ऐसे कोई कथा बोलेंगे तो ऐसी बात बोलेंगे तो गला काट देंगे। কি সাধু বলা হয়? इसे क्या बोला गया? অগরদানি। अवगढ़दानी, अवगढ़दानी साधु। ওই শ্মশানে মশানে ঘুরে বেড়ায়, शमशान में रहते हैं, ওই তন্ত্র মন্ত্র शमशान का वो लगाते हैं, राख लगाते हैं, মদ পান করে, तंत्र मंत्र करते हैं, मदिरा पान करते हैं, गांजा भांग इत्यादि। এখন বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসা করে বিক্রমাদিত্য আটজন যে রত্ন রয়েছেন তাদের यहाँ पर विक्रमादित्य ने सबको आदेश दिया कि देखिए और बताइए। কবে মরেছে কে জানে, কোন গ্রামে सब लोग सोच रहे हैं कौन मरा था, कब मरा था, किस गांव का है, कौन जाने। দাহ সংস্কার করা হয় বা মাটির মধ্যে দাহকেই করে দেওয়া হয়, মানে পুঁতিয়ে দেওয়া হয়। এখন কোন ব্যক্তি কত বছর কি করে করতে পারে? कौन व्यक्ति का मरा है क्या पता। তখন ওই কাপালিক সাধু तब उस कपालिक साधु ने अत्यंत क्रोध किया, এই সভার মধ্যে একজন পণ্ডিত নাই যে कहा कि इस सभा में कोई एक पंडित नहीं है। তখন বিক্রমাদিত্য তাকে বলেন আপনি 2 মিনিট অপেক্ষা করুন। तो उन्होंने कपालिक साधु को बोला कुछ समय के लिए आप इंतजार करो। সেখানে কালিদাস এলেন। तो उस समय সরস্বতী कालिदास आए, और पुत्र कालिदास। सरस्वती पर पुत्र कालिदास। তখন বলেন আপনি আপনার कालिदास ने बोला কি বলে থিওরিটিক্যাল দিব কি প্র্যাকটিক্যাল? बोला थियोरिटिकल बताऊं कि प्रैक्टिकल बताऊं। উত্তরটা দুই প্রকার দেওয়া যায়। उत्तर दो प्रकार से दिया जाता है, প্র্যাকটিক্যাল আর एक होता है प्रैक्टिकल, एक होता है थियोरिटिकल। আর একটা হচ্ছে বাস্তব রূপে দেওয়া। प्रैक्टिकल यानी करके दिखाना। বলে আচ্ছা বাস্তব প্র্যাকটিক্যাল দেখাও। तो उसने बोला अच्छा प्रैक्टिकल दिखाओ। একটা ওই ঝাঁটার যে শিক রয়েছে নারিয়েল শিক দিয়ে तो उन्होंने क्या किया, एक जो झाड़ू का सीख होता है वो लिया कालिदास ने। ব্যবহার করেন না নারিয়েল जैसे हम लोग झाड़ू देते हैं जिसमें जो सीख होता है, एक सीख मंगाया कालिदास ने। ঝাঁটার কাঠি ঝাঁটার কাঠ। একটা নিয়ে আসো, বলে নিয়ে আসো। তখন ওই কাপালিককে বললেন এই কানে ঢুকান তো। ঢুকালে কি হবে? কানের ছিদ্র तो রয়েছে না? कपालिक को बोला कि एक कान में लगाओ, दूसरे कान से निकल गया। বলে আরে মূর্খ तो ছিল। उन्होंने बोला अरे इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये मूर्ख। যার ছিল সে কি ছিল? মূর্খ ছিল। বলে কি করে জানলেন মূর্খ ছিল? বলে মূর্খ এই দিক দিয়ে শুনে আর এই দিক দিয়ে শুনে। যে পণ্ডিত যারা হয় তারা এই কান দিয়ে শুনে আর হৃদয়ের মধ্যে স্থাপন করে। হ্যাঁ কেবল হৃদয়ের মধ্যে রাখে না, তারা জীবনে কি করে আচরণ করে। হ্যাঁ তাই না? যিনি আচরণ করে, কেবল শাস্ত্র তো জানে সকল, কে না শাস্ত্র পড়ে বলুন? গীতা ভাগবত একটু কত পরিচয় কত আছে বাজারে পাওয়া যায়। হ্যাঁ 200 টাকা খরচ করতে ভাগবত গীতায় পাওয়া যায়। कौन ही शास्त्र जानता, 200 खर्चा कर दो आपको मिल जाएगा शास्त्र। পড়লে হয় না, केवल पढ़ने से होगा नहीं, क्या करना पड़ेगा, আচরণ করতে হয়। आचरण करना पड़ेगा। আবার শাস্ত্রের তো অনেক অর্থ হয়। हमारे शास्त्रों का तो अनेक अर्थ है, সংস্কৃত রয়েছে, संस्कृत সংস্কৃত শব্দ शब्द है, संस्कृत शब्द का अनेक अर्थ होता है। কিন্তু সেই অর্থ বাস্তব অর্থ सही জানতে अर्थ গেলে वास्तव में तभी पता चलेगा। যিনি ভগবানকে অনুভব করেছেন यदि भगवान को वास्तव में अनुभव करना चाहते हैं, जो भगवान का अनुभव किया है उसी साधु के पास जाना चाहिए। तस्माद् गुरु प्रपद्येन जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परिचय निष्णातो ब्रह्मणि उपसमाश्रयम्। যেতে হবে গুরুর কাছে, যেতে उस साधु के पास जाना चाहिए जो अनुभूति संपन्न है। সেই সাধুর কাছে গুরুর কাছে যেতে হবে যিনি সমস্ত শাস্ত্রের জ্ঞান রয়েছে। ऐसे साधु के पास जाना चाहिए जिसे समस्त शास्त्रों का ज्ञान हो, समस्त संशय को दूर कर सकता हो। সেই ভোগ থেকে তিনি নির্মুক্ত হয়েছেন।
समस्त विषय वस्तुओं से निर्मित हो, भगवत अनुभूति संपन्न हो, भजन करे भगवान की जो भगवान का भजन कर रहे हो, भगवान की अनुभूति कर रहे हो, ऐसे साधु के पास अनुभूति जानना श्रवण करने से होगा। जिसकी अनुभूति ही नहीं है वो आपको कुछ दे नहीं सकता, ध्यान रखना। अपनी शास्त्र ज्ञान को ज्ञान आप कर सकते हैं, 10 बार अपने श्लोक के बोल 10 बार एक श्लोक पढ़ेंगे, याद हो जाएगा आपको। धर्म के धर्म क्षेत्रे धर्म क्षेत्रे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे 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 करेंगे तो याद हो जाएगा आपको। गीता जुत्सु नमका मंडवास्त्री बाकीमा कुमुतसन जाओ। यदि अपना ब्रेन ठीक लागছে না बार-बार पढ़ते रहो। अगर आपका ब्रेन अच्छा है तो निश्चित रूप से आप याद कर सकते हैं। একটা ব্রেন উপর যদি একটা দাগ কেটে যায় তখন মনের মধ্যে কেন দাগ কাটবে? জ্ঞানটা একটা বিশেষ নয়। ज्ञान करने से कोई विशेष नहीं, बार बार अध्ययन करने से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। বৈরাগ্য वैराग्य, বিষয় ভোগ করে আবার সেখানে বৈরাগ্য বেশি করে খেলি তখন পেটে পায়খানা হবে। খাएंगे। আর না রে বাপ, আর না রে বাপ, আরে বাপ আর বেশি খাবেন বেশি तो टॉयलेट जाना पड़ेगा। বৈরাগ্য হয় কিন্তু এই জ্ঞান বৈরাগ্যটা হচ্ছে ভক্তির অঙ্গ না। ज्ञान वैराग्य भक्ति का अंग नहीं কবু নহে ভক্তির অঙ্গ। है। ज्ञान वैराग्य कभी नहीं भक्ति का अंग है, ध्यान रखना। জ্ঞান বৈরাগ্য কবু নহে ज्ञान वैराग्य कभी नहीं भक्ति अंग, ज्ञान वैराग्य भक्ति का अंग नहीं है। ভক্তিকে সহায়তা করে মাত্র। ये सब क्या करते हैं? भक्ति के लिए सहायता करते हैं। এজন্য জ্ঞানী হোক অথবা यदि कोई ज्ञानी हो अथवा वैरागी हो, তাদের কাছ থেকে উন্নত মার্গের কথা শুনলে ভক্তি হবে না। ভক্তি হবে কার কাছে? उसकी कथा श्रवण करने से हमारी उन्नति नहीं होगी भक्ति मार्ग में। যার হৃদয় যিনি অনুভব किसे श्रवण करना है? जिन्होंने अनुभव किया है, जिनके हृदय में गोविंद का विश्राम है। इसलिए कहा गया तस्मात् गुरुं प्रपदेत् जिज्ञासु श्रेय उत्तमम साब्दे परे च निष्णातो ब्रह्मणि उपसमाश्रयम्। এইজন্য শাস্ত্রের মধ্যে বলা হয়েছে। इसलिए शास्त्रों में बोला गया है। কি বলা হয়েছে? क्या बोला गया है? সাধুর কাছে যেতে হবে। যে সাধু साधु, ऐसे साधु के पास जाना चाहिए जिस साधु ने अनुभव যে किया है, সাধু সদ্গুরুর সেবা করে। जो साधु सदगुरु की सेवा कर रहा है, যে সাধু জীবনে নিজেকে जिस साधु ने अपने जीवन को भगवान को अर्पित कर दिया है, भगवान की सेवा में नियुक्त कर दिया है, ऐसे साधु के श्रवण करने से होगा। আর কিছু जिसके हृदय में केवल और केवल गोविंद है और उनके हृदय में कोई नहीं है, ছাড়া गोविंद को छोड़ करके और कुछ जानते नहीं हैं, সেই সাধুর কাছে যেতে হবে। उस साधु के पास जाना चाहिए থেকে और उनके मुख से भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। আমাদের প্রভুজি চরণ हमारे परम पूज्य चरण है, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ज्येष्ठ भ्राता, गुरु भ्राता तीर्थ महाराज, তিনি যখন उन्होंने হরিকথা বলতেন मतलब वो हरि कथा बोलते थे। হরিকথা বলতে বলতে তিনি যখন বিশেষ করে हरि कथा बोलते बोलते যখন রাজরানী কথা विशेष करके जब राधा रानी की कथा का वर्णन करते थे তিনি আর নিজেকে স্থির রাখতে পারতেন না। तो उस अपने सिर को स्थिर नहीं रख पाते थे। চোখ থেকে আপনা আপনাই দরদর করে অশ্রু প্রবাহিত হতো। उस समय उनके आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगता था। आप लोग तो जानते हैं, নিজেকে স্থির রাখতে পারতেন না। निज को स्थिर नहीं रख पाते थे। जब वो श्रीमती राधिका की कथा बोलते थे, विशेष करके রাজরানী जब वो राधा रानी की ভাবের কথাগুলো বলতেন। भाव की कथा बोलते थे, তিনি নিজেকে আর স্থির রাখতে পারতেন না। निज को स्थिर नहीं रख पाते थे। স্তম্ভ হয়ে যেতেন না, স্থির হয়ে যেতেন। 5 মিনিট তিনি আর 2 मिनट 5 मिनट বলতে পারতেন না। वो कथा बोल ही नहीं पाते थे। কেন? क्यों? তার হৃদয়ের মধ্যে সেগুলো অনুভব হচ্ছে। उनके हृदय में क्योंकि अनुभव है। বিষয়বস্তু অনুভব না হয়, यदि विषय वस्तु अनुभव नहीं है, বিষয়বস্তুটা আমরা বাস্তব রূপে না বুঝতে पारी না विषय वस्तु को वास्तव रूप से में नहीं समझते हैं। যেমন আগুনটা কি বলুন তো, গরম না ঠান্ডা? গরম। এটা হচ্ছে থিওরিক্যাল কথা। अब जो गर्म है कि ठंडा, बोले गर्म। আপনি জানেন ये प्रैक्टिकल कथा। গরম আগুন সকল বস্তুকে পুড়িয়ে দেয়, পুরানোর ক্ষমতা রাখে। এটা হচ্ছে কি না স্বাভাবিক বাস থেকে আসে না।
আগুনের ধর্মটাই হচ্ছে, স্বভাবটাই হচ্ছে বস্তুকে কি করে দেওয়া, পুড়িয়ে দেওয়া। বরফের কি ধর্ম রয়েছে? হ্যাঁ, ঠান্ডা। এই बर्फ का क्या धर्म है? ওই বরফের মধ্যেই তার ठंडा करना। আমি যে কথা বোঝাতে চাইছি একটু যদি চিন্তা করে বুঝতে পারবেন। अगर कोई बर्फ में है तो वो ठंडा ही रहेगा, जो गर्म में है वो गर्म ही रहेगा। দেওয়ার যে তার ক্ষমতা, সেটা অগ্নির মধ্যে সহজাত রূপে রয়েছে, अग्नि में सहज रूप में गर्मी रहती है। স্বতঃসিদ্ধ। আমি সাধারণত জিওমেট্রি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করি বা বোঝার চেষ্টা করি। जियोमेट्री समझने की चेष्टा करते हैं। जियोमेट्री में दो वस्तु रहती है, ज्यामिति। হ্যাঁ আছে, কি আছে? একটা হচ্ছে সম্পাদ্য আর একটা আছে एक है संपाद्य, উপপাদ্য। उपाद्य, दूसरा है उपवाद्य। अपना तो जाने, आप तो जानते हैं। সম্পাদ্য যেটা রয়েছে সেটাকে संपाद्य जिसमें रहता है দরকার নেই। उसको प्रमाण करने की आवश्यकता नहीं। त्रिभुजे तीन कोणीय समष्टि समान, त्रिभुज में 3 कोण समान है तो कितना डिग्री? 2 समकोण है, 180 डिग्री। এটাকে প্রমাণ করার দরকার নেই। इसको प्रमाण करने की आवश्यकता नहीं है। एक लंबा, उसको बोलेंगे 90 डिग्री से प्रमाण करने की आवश्यकता नहीं है। আপনারা মাস্টার আছেন তো? হ্যাঁ, তাই না? এগুলো প্রমাণ করা দরকার, একটু বলা হচ্ছে इसको प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं, इसे बोलते हैं स्वतः सिद्ध। আর উপপাদ্য কোন বস্তুকে প্রমাণ করতে সম্পাদ্যের যে किसी वस्तु को प्रमाण करना है उसे संपाद्य আলোচনা করা হচ্ছে, প্রমাণ করা হচ্ছে। प्रमाण करने की आवश्यकता है। সেজন্য আমার বলার তাৎপর্য হচ্ছে हमारे बोलने का तात्पर्य यही है, যিনি ভগবানকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন, जिसने भगवान की अनुभूति की हुई है, বা তার প্রেম মাধুর্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন, प्रेम माधुर्य की उपलब्धि की है, তিনি একমাত্র অনুভব করেন। वही एकमात्र अनुभव कर सकता है। স্বভাব জাত আছে, যেমন আপনি বললাম অগ্নি, जैसे हमने बोला अग्नि का स्वभाव है गर्म करना, পুড়িয়ে দেওয়া, ताप देना। গরম করা। ঠিক তদ্রূপ ठीक तद्रूप ठीक ভগবানকে যিনি অনুভব করেছেন, भगवान को তার স্বভাবটা সেখানে স্বাভাবিক হয়। अनुभव करना है, अनुभूति है। নারায়ণ করা तो आपका स्वभाव ऐसा ही रहे। नयनम गलद अश्रुधारया बदनम गदगद रुद्रया गिरा নিত্যম पुलकय निचितम बपुर कदा উপকদা তব নাম तो नाम ग्रहणे भविष्यति। মহাপ্রভু বলেন না, महाप्रभु ने बोला अपने शिक्षाष्टकम में আপনার नाम ग्रहण করতে कि प्रभु का नाम करते करते आंखों से अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगेगी। হবে হবে বলো। कब ऐसा दिन आएगा कि जब भगवत नाम करते करते आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। अपराध है छाड़ी सुधना में रुचि। হবে হৃদয়ে সঞ্চার, হবে হবে বলো সেদিন से दिन হবে हमारा নিত্যানন্দ कवि नित्यानंद ছড়াইবে মোর বিষয়ের মায়া, দিয়া নিজ চরণের ছায়া, নামের হাটে রে দিবেন অধিকার, दिव्य अधिकार। সেদিন আমার। हमारे भक्त विनोद ठाकुर बोल रहे हैं, কবে হবে বলো সেদিন, कह रहे हैं कब ऐसा दिन आएगा, কবে হবে, ऐसा दिन कब आएगा প্রাপ্ত আমরা করতে পারবো। হবে নিত্যানন্দ মনে করে দিয়া ছড়াইবে মোর, कब नित्यानंद प्रभु की कृपा होगी कि हमारा विषय वासना छूट जाएगी। जब नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं होगी, जब तक যে বিষয় মোহ মায়া इस संसार का विषय मोह माया। পারবো। এই জন্য বলছেন কবে নিত্যানন্দ মনে করে इसलिए দিয়া कहते हैं कभी नित्यानंद प्रभु हमारे ऊपर दया करेंगे। দিয়া মরি চরণের ছায়া, নামের হাটে রে দিবেন অধিকার। তিনি কবে আমাদের কৃপা করে তার চরণ কমলে স্থান দিবেন। कह रहे हैं कब कृपा करके श्री नित्यानंद प्रभु हमारे ऊपर হয়ে कृपा करेंगे, दया करेंगे। কিভাবে নাম কীর্তন করবো? किस भाव से नाम कीर्तन करेंगे? কাঁদিতে, कांदते कांदते यानी रोते हुए रोते हुए কাঁদতে কাঁদতে সেই নাম नाम তবে ग्रहण करना। বনে कभी गौरव बने। মদনী তাটে আরাধে हाँ राधे हाँ कृष्ण बोली, কবে গৌর
हरे कबे गौरा बने राधे हाँ राधे कृष्ण बोली कांदिया बेड़ा बो देह सुख छाड़ी देह सुख छाड़ी नाम लता तरुताबे गौरवन यानी नवदीप धाम चलते चलते हाँ राधे हाँ कृष्ण बोले पुले ने गोड़ा गोड़ी दे गंगा जी के तट पर लोट पोट करेंगे जब तक नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होगी तब तक हमारा ये विषय का मोह दूर होगा नहीं। दूर होगा इसलिए बोल रहे हैं नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करो। गुरुपाद पद्म की कृपा, नित्यानंद प्रभु की कृपा मीन्स गुरुपाद पद्म की कृपा। साधारण रूप में इसे समझने का प्रयास करिए। जब गुरु की कृपा होगी, गुरु सेवा के द्वारा ही भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादा अनागतिकतोपि जैन वस्तस्य गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु की कृपा होगी तो भगवान की निश्चित ही कृपा होगी। इसलिए गुरुपाद पद्म, यदि गुरुदेव की कृपा प्राप्त ना हो तो भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। बिना महतो पदरजो अभिषेका। भरत महाराज रवगढ़ राजा को बोल रहे हैं, रवगन घर संसार त्याग देने से कोई भगवान को पा जाएगा, लाल कपड़ा लेने से कोई भगवान को प्राप्त कर लेगा, घर को छोड़ देने से कोई भगवान को प्राप्त कर लेगा, फल मूल कंद खाने से कोई भगवान को प्राप्त कर लेगा। फल मूल खा करके यदि फल मूल खा करके भगवान को प्राप्त कर सकते तो कितने बंदर ने भगवान को प्राप्त कर लिया होता। फल मूल खा करके भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? महतो पदरजो अभिषेकम। गुरुपाद पद्म के चरण कमल में निज को अभिषिक्त कर दो, समर्पित कर दो। जो पंचामृत के द्वारा भगवान को अभिषेक कराते हैं, जिस तरह से ठीक उसी तरह से गुरुपाद पद्म के श्री चरणों में अपने आप को अभिषिक्त कर दो। गुरुदेव के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो। यही वास्तव में इसका मूल तात्पर्य है। जब तक गुरुपाद पद्म के चरण में निज को समर्पित नहीं करेंगे तब तक विषय वस्तु अनुभव कल तक समर्पित नहीं करेंगे। इसलिए गुरुवर्ग को क्या बोला गया है कि गुरुदेव को बोला गया है अभिन्न नित्यानंद तत्व गुरु तत्व। गुरुपाद पद्म को क्या बोला गया है? अभिन्न बलदेव या नित्यानंद प्रभु। गुरुपाद पद्म की कृपा होगी तब भगवान की कृपा होगी। भगवान बोल रहे हैं, आचार्य माम जानी आत्मा मन्ये कहिर्चित नाम मृत्यु बुद्धिया सहित सर्वदेव मयो गुरु। आचार्य गुरुपाद पद्म को पकड़ो, उनकी अवज्ञा मत करो, उनके मृत्यु बुद्धि मत करो। वो मत सोचो कि एक सामान्य व्यक्ति हैं, मेरी तरह मनुष्य हैं, सामान्य है, मेरी तरह तो सारा कार्य कर रहे हैं, ऐसा देख के अपनी तरह मत समझना। उन्हें भगवत स्वरूप जानो, मेरे स्वरूप ही जानो। भगवान कह रहे हैं भगवान है विषय विग्रह और गुरुदेव आश्रय विग्रह। आश्रय विग्रह, आश्रय विग्रह के अनुगत्य में विषय विग्रह की हमें सेवा करनी है।
अपन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने क्या बताया সেই মূল আকর कि मूल বিষয় বিগ্রহ কৃষ্ণ विषय विग्रह ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण আর ये है विषय विग्रह। আকর বিষয় मूल आश्रय विग्रह कौन? राधा रानी। मूल आश्रय विग्रह श्रीमती राधा रानी। इसलिए राधा रानी के अनुगत्य में কৃষ্ণের कृष्ण की सेवा करनी है। তাই আমাদের বলেন কি और बोला क्या? आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस्य तद धाम वृंदावनम रम्या काजित उपासना व्रज वधूरजैन रजा कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणममलं प्रेम पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतविदम तत्रादरो नः परः। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस्य। আমাদের আরাধ্য দেবকে हमारा आराध्य देव कौन? ভগবান বলেন भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर नंदनंदन श्री कृष्ण। তিনি হলেন আমাদের আরাধ্য इसलिए बोला गया आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस्य तद धाम वृंदावनम। उनका धाम कहाँ है? বৃন্দাবন ধাম उनका धाम है ब्रज वृंदावन। বৃন্দাবন ধামের কথা বলা হচ্ছে যে বৃন্দাবন ধামের ধুলির जिस वृंदावन धाम की धूली বড় বড় ভক্ত उद्धव आदि बड़े बड़े भक्तगण प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे हैं। বৃন্দাবন কি সামান্য ধাম वृंदावन कोई सामान्य भूमि नहीं है, कोई सामान्य स्थान नहीं है। उस धूली वो धूली कड़ा कोई सामान्य नहीं है। চরণ ধুলি गोपियों की चरण रज है, ये कोई धूली नहीं है। জীবনের চরণ ধুলি নাম লিখেছিল নন্দকানন এগুলো বলা হয় না गोपियों की चरण धूली मिल जाए तो बोले क्या? नंदन कानन नंदनंदन। কে মাথেছেন কৃষ্ণ নিজে হ্যাঁ इस धूली को कौन लेता है? कृष्ण भी लेता জীবনের চরণ ধুলি है। गोपियों की चरण কে धूली লিখেছেন কৃষ্ণ स्वयं श्री कृष्ण নিজে চারি অঙ্গের মধ্যে निज अंगों में लगाते हैं। হ্যাঁ কৃষ্ণের জ্বর হয়েছে कृष्ण को ज्वर हो गया। জ্বর ভগবানের আবার জ্বর হয় নাকি भगवान को कहीं ज्वर होता है क्या? ज्वर होता है बुखार? भगवान लीला प्रकाशित कर रहे हैं। ডাক্তার দেখা গেল ওই জ্বর কমছে डॉक्टर না को दिखाया, कोई ज्वर नहीं है, कोई बुखार नहीं है। এখন সমস্ত ব্রজবা এই সমস্ত কারাবাস চিন্তায় পড়ে গেল যে কৃষ্ণ समस्त द्वारिकावासी चिंता में पड़ गए कि कृष्ण का ज्वर कैसे ठीक होगा। এমন সময় বৈদ্য এলেন কৃষ্ণ নিজে বৈদ্য সেজে এলেন হ্যাঁ বলে হ্যাঁ এর জ্বর ঠিক হয়ে যাবে যদি बोले हाँ नारद जी को ये दी, নিজের হাতে ये बुखार ठीक हो जाएगा কৃষ্ণের মাথায় দিয়ে দেয়। यदि कोई भक्त अपने चरण रज को कृष्ण के मस्तक पे रख देगा, कृष्ण के सर पर रख देगा तो ठीक हो जाएगा। द्वारिका के सारे लोग उन्हें तो भगवान मानते हैं, মথুরার क्योंकि বহু দ্বিভুজ मथुरा में कभी द्विभुज कभी चतुर्भुज, তার মধ্যে অধিক कि इनकी द्वारिका में अधिक समय चतुर्भुज द्विभुज चतुर्भुज रूप में रहते हैं। द्वारिका में ভগবান হ্যাঁ এখন কি করবে কে দিবে ভক্ত আচ্ছা পত্নী তো সব भगवान क्या करेंगे? পতির প্রিয় না पत्नी सबके लिए पत्नी क्या? पति तो प्रिय है। না আচ্ছা আমি দেখি तो नारदर्शी ने कहा अच्छा हम देखते हैं। পত্নীগণ রয়েছেন तो जितनी भी पत्नीगण है, रुक्मणी सत्यभामा जामवंती इत्यादि सब सती साध्वी नारी हैं। এক পতিব্রতা एक पतिव्रता कृष्ण छोड़ करके और कुछ जानती नहीं है। এখন কি করলেন নারদজি গেলেন তাদের কাছে तो इस समय नारद जी गए रुक्मणी सत्यभामा से पूछा রুক্মিণীর চরণ ধুলি দিন कि आप चरण धूलि दे दीजिए, মাথার মধ্যে রাখলে কৃষ্ণের जिससे कृष्ण के सिर पर रख देते हैं कृष्ण का बुखार ठीक हो जाएगा। আমরা নরকে চলে और अरे हमें नरक जाना पड़ेगा। कौन बोला? ब्रज द्वारिका की महिषिया बोलती हैं, ভগবান क्योंकि वो स्वयं भगवान हैं। কি মানে আমি তো জানি না কলিযুগ না ये कलयुग है भैया। কিন্তু রুক্মিণী সত্যমা কি বললেন तो रुक्मणी सत्यभामा ने क्या बोला? অতি দেব पति देव भव, পরদেবতা শ্রেষ্ঠ ভগবান ভগবানের মাথার উপর पति देवता तुल्य है। তোমরা নরকে চলে যাও দ্বারকার মধ্যে কেউ দিলেন না द्वारिका में किसी ने दिया नहीं। তখন নারদ ঋষি तो उस समय नारद ऋषि कहाँ गए? বৃন্দাবনে ब्रज वृंदावन। বৃন্দাবনে যেতেই সকলেই আকুলভাবে কেঁদে পড়ে নারদ ঠাকুর वहाँ पर नारद जी आए। আমাদের ব্রজের কানায় কেমন আছে আছে কিনা
কি আমাদের তিনি কখনো স্মরণ করেন? ब्रज गोपियाँ नारद जी से कह रही हैं শুনেছি নাকি कि हमारे তিনি कन्हैया সেখানে कैसे গিয়ে हैं, क्या कभी हम लोगों को याद करते हैं? 16,108 রাজমহিষীর সঙ্গে তিনি বিবাহ করেছেন। 16,108 राजमहर्षियों के संग जिन्होंने विवाह किया है, তিনি বিবাহ করেছেন। তিনি সুখে আছেন? वो सुखी से हैं, सुख से तो हैं। তার কি হয়েছে, কেমন আছে তাই বলুন। आप क्यों आए बताइए? के मनाचे मतलब कैसे हैं? থেকে আলে আমরা তাকে তো জিজ্ঞাসা করি। कोई आता है तो हम पूछते, सबसे पहले ये पूछते हैं के मन आचे मतलब कैसे हो। তাই বলা হয় না? How are you? बोलते हैं ना हाउ आर यू। হ্যাঁ? তাই সমস্ত ব্রজবাসী তার মধ্যে ব্রজবৃন্দগণ समस्त ब्रजवासी नारद जी से जानने की इच्छा कर रहे हैं, पूछ रहे हैं প্রসঙ্গে একটা सबसे पहले कि आप कैसे हैं, उसके बाद अपने कन्हैया के बारे में पूछ रहे हैं। তারাবতীর দেশে কি বললাম, হারিয়ে গেছে ব্রজের কানাই हारिए गए छे ब्रजेर कन्हई। কোটি কেলে আপন নয়ন জলে ব্রজের কানাই ব্রজের সো দুল দিয়ে কেলে হ্যাঁ এগুলো কীর্তনের মধ্যে রয়েছে। एक लोग कीर्तन में बोल रहे हैं ব্রজের কানাই তুমি कि ব্রজে ब्रजेर कन्हई तुम ही ब्रजेश। যদি আসতে না পারো অধিক সময় यदि জন্য, अधिक समय के लिए नहीं आ सकते, 1-2 दिन के लिए आ जाते। যদি আসতে ना পারো কম से 2 দিনের জন্য भाई अधिक समय के लिए नहीं रह सकते तो 1-2 दिन के लिए आ जाए। বিদেশে থাকেন, ঠিক আছে। जैसे हम हैं, नहीं आ पाते तो 1-2 दिन के लिए आते। কানাই ब्रजेर कन्हई হারিয়ে গেছে ব্রজের কানাই তারাবতীর দেশে ত্রৈলোকটি কেলে আপন নয়ন জলে কেলে অস্থির ব্রজবাসীগণ দেখুন কেমন আছে আমার। के मन अच्छे তখন নারদ ঋষি कैसे हैं। ধীরে ধীরে তাদের সান্ত্বনা দিলেন। तब नारद ऋषि ने धीरे धीरे सांत्वना दिया। ঠিক আছে, हाँ ठीक है। কেমন ঠিক আছে। क्या ठीक है? তারপরে ধীরে ধীরে নারদ ঋষি तब धीरे धीरे नारद ऋषि ने बोला কৃষ্ণের প্রবল মস্তক মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে कृष्ण के सर में दर्द हो रहा है और उनको बुखार हो गया है। ये कथा सुनते ही ব্রজগোপীগণকে ब्रज বললেন, गोपियों ने बोला দ্বারকার মধ্যে কোনো বৈদ্য নাই, द्वारिका में कोई वैद्य नहीं है কোনো ওষুধ দেওয়া হয়নি তাকে। कि जो उनको दवा दे सके। নারদ ঋষি বললেন, नारद ऋषि ने बोला वैद्य तो है, ঔষধ রয়েছে, औषध भी है, কিন্তু সেই ঔষধের সঙ্গে যেটা অনুমান সেটা পাওয়া যাচ্ছে না। হ্যাঁ? लेकिन वो औषधि नहीं मिल पा रही। কতগুলো समझ रहे हैं? ওই আয়ুর্বেদিক ঔষধ খেতে হলে তার সঙ্গে কি দরকার, কতগুলো অনুমান দরকার। आयुर्वेदिक औषधि पता चल যেমন जाए। ধরুন বৈদ্য দেন, দেখবেন वैद्य আমি तो এই ওষুধটা দিলাম, এই ওষুধের সঙ্গে আর একটা গাছের ছাল বা बताएगा इस औषधि के संग में एक छाल या कुछ मिला करके दे दो। হ্যাঁ? তাই বলা হয় না? তাকে বলা হচ্ছে অনুপান বলা হয়। तो उसे बोला गया अनुपान। ঔষধ রয়েছে কিন্তু সেটা অনুপানটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। औषध तो है, বৈদ্য রয়েছে সেখানে, ডাক্তার রয়েছে, वैद्य भी है, ঔষধ डॉक्टर भी রয়েছে, है, औषधि भी है, কিন্তু একটা অনুপান পাওয়া যাচ্ছে না। लेकिन अनुपान। বলে সেটা কি? तो उन्होंने बोला क्या? বৈদ্য বলেছেন যদি কোনো ব্যক্তি তার वैद्य ने बोला कि यदि कोई अपनी चरण धूलि गोविंद के मस्तक पर रख दे তাহলে তার तो सब ठीक हो जाएगा, उनका बुखार समाप्त हो जाएगा, ये सब ठीक हो जाएगा, सिर भी ठीक हो जाएगा। এটি হচ্ছে অনুপান। হ্যাঁ? তখন ব্রজগোপীগণ বলছেন কেউ ब्रज गोपियों ने बोला किसी ने दिया नहीं। পাওয়া গেল না সেখানে। অনুপানটা সেখানে পাওয়া গেল না। কোথায়? দ্বারকার মধ্যে। তাই নিয়ে খেলে বা শুনলেই ব্রজগোপীগণ सुनते ही ब्रज गोपी কোথাও যাই চিন্তা করি না। कहा कि अरे हम नरक जाएं कहीं भी जाए हमें चिंता नहीं, लेकिन हमारे गोविंद का सुख किस में है हम तो यही जानते हैं। গোবিন্দের সুখের জন্য তারা কি করলেন? गोविंद के सुख के लिए সমস্ত গোপীগণ কি করলেন? নিজের उन्होंने क्या किया, अपने चरणों को झाड़ करके जो धूली थी, ধুলিগুলোকে धूली ওই নারদের नारद ऋषि को दे दिया। কাপড়ের মধ্যে বেঁধে ये वास्तव में ब्रज का भाव। নারদ ঠাকুর দেরি করবেন না। तो उन्होंने बोला, हे नारद जी देर मत करना, तुरंत चले जाओ, क्योंकि मेरे प्रभु को कष्ट हो रहा है, मेरे गोविंद को कष्ट हो रहा है। দেখুন গোপীগণ
বিচার করলেন देखो না गोपियों ने विचार नहीं किया যে তাকে নরকে যেতে হবে भगवान की प्रसन्नता के लिए यदि नरक भी जाना पड़े तो क्या শুদ্ধ প্রেম। सुविधा इसे बोलते हैं शुद्ध प्रेम। নারদ এসে তাই নিয়ে গেলেন नारद ऋषि आए और गोविंद के सिर पे उस धूल को रख একটা दिया। অবশিষ্ট ছিল ওপরে ফেলে দিলেন সেটাকে এখনো বলা হয় গোপী তালাব। इसे बोला गया গোপী गोपी तालाब। মানে পুষ্করিণী, পুকুর। হিন্দিতে বলে তালাব। আমরা পুকুর বলি তো हम भी पोखर बोली तो हम लोग पोखर बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं तालाब। তালাব। এখানে আপনার দাঁড়াতে যাবেন এই গোপী महाद्वारिका में जाएंगे, एक गोपी तालाब है जहाँ पर ब्रज गोपियों চরণধুলিকে নারদ ঋষি के चरण धूलि को আমাদেরকে नारद ऋषि ने এগুলো হচ্ছে वहाँ पे दिया था, उसी को बोलते हैं जो हम लोग तिलक करते हैं, जैसे बोलते हैं गोपी चंदन। राधा कांड पे लोग करते हैं, काला काला होता है, इसे हम बोलते हैं गोपी चंदन, गोपी तिलक। তাৎপর্যটা কি বলবো तात्पर्य क्या है बोलने का? উল্লাসে তখন সে কাঁদতে পারে যখন তার হৃদয়ের মধ্যে অনুভব হয়। जब तुम्हारे हृदय में अनुभव होगा। আগুনটা হাতে আগে বললাম আগুনটা গরম বললে তার হবে না আগুনটা যদি হাতে হাত हम गरम बोलेंगे तो समझ भले ना आए, लेकिन आग में आग रखेंगे तो पता चलेगा, तब अनुभव होगा। বললাম তো আগুনটা গরম এটা হচ্ছে থিওরিটিক্যাল बोलेंगे तो गरम, ये तो थियोरिटिकल है। আর প্র্যাকটিক্যাল কি ये प्रैक्टिकल क्या? जब वहाँ पर हाथ रखेंगे, আগুনের মধ্যে হাত রাখলে आग के बीच में हाथ रखेंगे तो पता चलेगा। বরফের মধ্যে হাত রাখলে আমার হাতটা बर्फ के ऊपर हाथ रखेंगे तो ठंडा लगेगा, ये अनुभव है, এগুলো হচ্ছে অনুভব। इसे कहते हैं अनुभव। ঠিক তদ্রূপ যিনি ठीक उसी रूप में भगवान को अनुभव किया है, जिसने भगवान को अनुभव किया है, তার জন্য আকুলিত ব্যাকুলিত হচ্ছে উৎকণ্ঠিত হচ্ছেন वो उत्कंठित होते তাকে हैं, আমি কি করে পাবো उसको হ্যাঁ? এই জন্য বলছে না যে বস্তু अनुभव किया है, सोचता है कि उसको कैसे प्राप्त करें। তাকে পাওয়া অত্যন্ত দুর্লভ হ্যাঁ? এই যে আমাদের নটর इसलिए हमारे नरोत्तम दास ठाकुर দাস ঠাকুর কি বলছে क्या बोलते हैं? হ্যাঁ? কি বলছে क्या बोलते हैं? পাশানে কোটিব মাথা पाषाणे कोटि माथा এ পশু अनाले बसीला গৌরাঙ্গের गौरांगेर पुनर्निधि कथा যে আনিল প্রেমধন जनाला प्रेम धन হেন প্রভু কোথা গেল আচার্য ঠাকুর হ্যাঁ? হেন প্রভু হেন তীর্থ প্রভু কোথায় গেল प्रभु कहाँ गए? कोथाई ठाकुर कहाँ चले गए आप? হঠাৎ করে তিনি চলে গেলেন। ঈশ্বর ইচ্ছাধীন ईश्वर इच्छा जो है, মহাপ্রভু নিজে বললেন महाप्रभु ने बोला हरदास ठाकुर के हरदास ठाकुर छोड़ के चले गए। महाप्रभु ने क्या बोला? কৃপা করি कृपा करी। দিয়া ছিল সঙ্গ ঈশ্বরের ই- ইচ্ছা সেই সঙ্গ হইল ईश्वर की इच्छा से ही संग प्राप्त होता है। भगवान कृपा करें तो संग रहेंगे, তারপরে তিনি বিচ্ছেদ করেন। भगवान कृपा करे तो विच्छेद करा देते हैं। দাস ঠাকুর তাই বলেছেন কি বলেন মহাপ্রভু নিজে বলছেন যখন হরিদাস महाप्रभु स्वयं बोल रहे हैं कि हरिदास ठाकुर चले गए, যাকে বলা হচ্ছে হরিদাস ঠাকুরের নির্যান তখন মহাপ্রভু নিজে আনতে লাগলেন। কৃপা করে দিয়াছিল সঙ্গ ঈশ্বরের ইচ্ছা সেই সঙ্গ হইল ভঙ্গ। ईश्वर की इच्छा से ही संग भंग होता है और ईश्वर की इच्छा से ही मिलन होता है। स्वतंत्र ईश्वर तो भगवान है, स्वतंत्र ईश्वर स्वयं भगवान है। তিনি দেন আবার তিনি কেড়ে নেন। তাই জন্য গোপীগণ বলছেন যখন কৃষ্ণ गोपी लोग बोलती हैं বৃন্দাবন থেকে যখন মথুরায় যাচ্ছেন जब श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा आए
এই রথে বসে अक्रूर के रथ पर बैठ करके প্রতিদিন সেখানে আমরা বিরোধী কথা বলছি। गोपियों की विरह की कथा बोलते हैं। বিধাতা তুই কত নিষ্ঠুর, कहते हैं हे विधाता तुम कितने निष्ठुर हो, সঙ্গ দেয় আবার কেড়ে নেয়। তাই না? না, এটা হচ্ছে জগতের বিধি। वास्तव में जगत का विधि है, ये नियम है, আসেন जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा। श्री गुरुदेव सिंह अबाउट श्री भक्तिवेदांत तीर्थ गोस्वामी महाराज। কৃষ্ণ জগতের মধ্যে এসেছিলেন, कृष्ण जगत में आए কার্য সাধিত হলো। और अपना कार्य पूर्ण करके चले गए। এই জন্য বলছেন জগতের মুদ্রা পড়ি, এই মুদ্রা পড়ি। আবার কবে উত্তর কোসলা की होय बे मथुरापुरी उत्तर कौशल यानी भगवान रामचंद्र की भूमि। चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर चैतन्य महाप्रभु गौर सुंदर আবার वो भी आए তার লীলা को संग और लीला संपूर्ण करके चले गए। तद्रूप तद्रूप भगवान जो भक्तगण हैं, भगवान के जो भक्तगण हैं तारा भगवान की इच्छा भगवान की इच्छा से ही এই জগতে আসে। जगत में आते हैं আবার ভগবানের ইচ্ছাতে और भगवान की इच्छा के द्वारा ही জগতে নিত্য ধামে इस जगत से नित्य धाम में चले जाते हैं। সেবাতে নিযুক্ত হন। কেন এরকম হয় যদি আপনারা প্রশ্ন করেন, यदि कोई प्रश्न करे বাস্তব রূপে তত্ত্ব সিদ্ধান্তের कि वास्तव में तत्व सिद्धांत की कथा बोला जाए উদয়গ্রস্ত হয় না। উদয়গ্রস্ত হয়? হ্যাঁ? কেবল আমাদের দর্শন सूर्य अस्त होता नहीं है, आउट ऑफ विजन बना है। सूर्य सदा सर्वदा सूर्य सदा सर्वदा प्रकाशमान है। सूर्य देखा जाচ্ছে। यहाँ पर सूर्य दिखलाई दे रहा है। এখন যদি আপনি আমেরিকায় পৌঁছান, अभी आप अमेरिका पहुँच जाएंगे न्यूयॉर्क, तो वहाँ पर सूर्य मध्य रात्रि है, रात 12 बज रहा है, तो वहाँ पर तो सूर्य दिखलाई नहीं दे रहा। यहाँ पर सूर्य दिखाई दे रहा है, কিন্তু সূর্যরশ্মি বিশাল। किंतु सूर्य विशाल है, কেবল আমাদের চক্ষুর केवल हमारे आँखों से दिखाई नहीं दे रहा है। कभी हमारे आँखों के सामने आता है, कभी हमारे आँखों के सामने से चला जाता है। जिसे हम बोलते हैं उदय और अस्त, ठीक उसी रूप में भगवान নিত্য ভক্তগণ और भगवान के जो निज भक्त हैं তারা নিত্যই চিৎ জগতে ভগবানের সেবা করছেন। जिस जगत में भगवान की सेवा करते हैं और भगवान की इच्छा से ही জগতে इस जगत में आते हैं জীবের কল্যাণ করেন। जीवों का कल्याण करने के लिए। কি কল্যাণ করবেন? क्या कल्याण करते हैं? আপনাদের প্রেম প্রীতি দিয়ে স্নেহ মমতা দিয়ে अपना দেবেন। प्रेम स्नेह ममता देते हैं আর স্নেহ মমতা দিয়ে ফের ওরা কি হয়ে যায়? অন্তরালে চলে যায়। কেন জানেন কি? কেন দিয়ে আবার কেন তিনি চলে গেলেন क्या दिए জানেন কি? जानते हैं क्या? বলুন তো। তাকে বারবার স্মরণ করবার জন্য। হ্যাঁ? নিকটে থাকলে যে বস্তুর মহিমা আমরা বুঝতে পারি না। जिसके पास में रहते हैं उस वस्तु की महिमा समझ नहीं पाते, जो लेकिन जब हम वहाँ से उससे दूर रहते हैं तब हम उनकी महिमा को जान पाते हैं, तब उसकी महिमा हमारे लिए अधिक रहती है। পতি যখন আপনার फिर पति यदि गृह में रह रहा है, अपने घर में रह रहा है, पत्नी संग में रह रही है, तो उसकी महिमा को उतना समझ नहीं पाते। সেই পতি যদি দূর দেশে চলে लेकिन যায়, पति यदि दूर देश में चला जाए, पत्नी क्या करेगी? সর্বদা उसको सदा सर्वदा स्मरण करती है, चिंतन करती है। যদি আপনার পতিদেব यदि अपने पतिदेव दूर देश में चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, आप क्या करेंगे? সর্বদা চিন্তন করবেন सदा सर्वदा चिंतन करेंगे कि कब आएंगे, কবে আসবে চিন্তন করবেন। कभी आसबे, कब आएंगे, इसी का चिंतन करते रहते हैं। আবার যখন নিকটে থাকেন ঘরে लेकिन जब हम घर में रहते हैं, निकट में रहते हैं, চিন্তন হয় না। तब उतना चिंतन होता नहीं। এটা হচ্ছে প্রেম করো। झगड़ा होता है, इसे प्रेम कलह कहते हैं। আমি কেন বলছি না থেকে আমরা যখন দূরে থাকি क्या हम क्यों कहना चाहते हैं कि यदि कोई वस्तु हमसे दूर है तो हम उसकी महिमा को जानते, उसे अधिक याद करते हैं। দূরে থাকবো
जो वस्तु हमसे जितनी दूर है उस वस्तु के प्रति अधिक आकर्षण होता है। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। দেখুন আপনি 5 ফিট নিচে থেকে পড়ুন, ওটা পৃথিবী তাকে টানছে। যত আপনার পায়ে লাগবে, যদি 10 ফুট উপর থেকে পড়েন আরো বেশি লাগবে। इतना 5 फुट से अगर कोई गिरता है तो अधिक लगेगा, लेकिन अगर 10 फुट ऊपर से करेगा तो अधिक लगेगा। अगर कोई 5 फुट से कूदता है तो उसे कम चोट लगेगी, कोई 10 फुट से कूदता है तो अधिक लगेगा। विज्ञान की बात बोली गई, साइंस में बोला गया है जो वस्तु हमसे जितनी दूर है वो उसका आकर्षण उतना अधिक होगा, जो जिसके निकटता है उससे उतना आकर्षण होता नहीं। जयद्वार में बोला गया है, जहाँ पर गुरु वैष्णवगण महाभागवतगण हमारे पास रहते हैं तब हम उनकी महिमा को समझ नहीं पाते। कितने महान हैं, कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, तो हम उनकी महिमा को समझ नहीं पाते। उनकी महानता को, उनकी महिमा को नहीं समझ पाते। जब वही महापुरुष जब हमसे दूर चले जाते हैं तब हम हाय 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 करते हैं। हेलाई रतन कि इतना मूल्यवान वस्तु जो प्राप्त हुई थी वो चली गई, हेराई अर्थात चला गया। हमारे पूज्यपाद ज्येष्ठ भ्राता गुरु भ्राता तीर्थ महाराज, जिनका जो अवदान है, जिनका उनका जो महात्म्य है कोई भूल सकता है, अपूर्ण है। इनका जो व्यक्तित्व, उनकी जो महिमा कोई कर नहीं सकता, क्योंकि उनका व्यक्तित्व अन्य के द्वारा होगा नहीं। सामान्य रूप में कोई प्रयास करे, लेकिन ये अपूर्णीय है कि उसको पूर्ण नहीं कर सकता कोई। कर पाएगा किंतु उनकी जो अनुपस्थिति है उस अनुपस्थिति को कोई पूर्ण नहीं कर पाएगा। उनका भाव, उनके भजन, उनकी सेवावृत्ति, उनकी स्नेह ममता प्रीति जितनी थी लोगों के प्रति, जिस तरह से माँ पुत्र को स्नेह करती है। कोई यदि बोले माता की माते स्नेह करेंगे, ऐसा कोई बोले, लेकिन संभव नहीं है। माता की जो ममता है वो कोई दे नहीं सकता। समय हो गया है, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक विधवा महिला थी, एकमात्र पुत्र था, उसका सहारा एकमात्र पुत्र है। लगभग उसकी आयु 18 साल 20 साल। माँ प्रसाद बना के रखती थी, स्कूल से पढ़ के आता था और प्रसाद। वो जो लड़का था अन्य एक युवती के पाले पड़ गया था। समझ रहे हैं? हाँ, किसी युवती के पाले पड़ गया था। छुप छुप के जो प्रेम करते हैं कोई जानता नहीं। एक दिन लेट हो गया, कब ऐसे करेंगे? लुके थे। है सुनो 2 मिनट।
हम विवाह करके वैवाहिक जीवन व्यतीत करें। মেয়েটা তখন কি বলে, দেখো তোমার সঙ্গে তো বিবাহ করতে পারি, কিন্তু उसने क्या बोला लड़की ने মায়ের সঙ্গে আমি থাকতে পারবো না। कि हम तुम्हारे साथ विवाह तो करेंगे लेकिन तुम्हारी मम्मी के साथ नहीं रह सकते। দেখো আমার বাবার মৃত্যুর পর আমার तो उसने बोला हमारे पिता की मृत्यु के बाद हमारी माता ने ही मेरा पालन पोषण किया, हम माँ को कैसे त्याग कर सकते हैं, और हमारी माता का और कोई नहीं है। তখন মেয়েটা কি বললো, फिर उस लड़की ने क्या बोला, আমাকে একটা জিনিস দিতে পারবে, अगर तो अपनी माता को त्याग नहीं कर सकते तो आपके साथ विवाह नहीं कर सकते। যা বলবেন তাই দিই। तो लड़के ने बोला कि जो तुम बोलोगी वही करेंगे। যাও এখনই तो उस रात्रि का समय है 10 बजे, এই চাকুটা না, चाकू लेके जाओ, চাকুটা ছুরিটা, যাও তোমার মায়ের কলেজা, तुम अपनी माता का कलेजा काट करके ले आओ। দেখুন যার মধ্যে প্রেম পড়ে যায় সবকিছু করতে পারে। जहाँ ছুটে চললো, प्रेम पड़ जाए वहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाता है। माँ वहाँ पर सो रही है, আমার ছেলে কখন সে খাবে, पुत्र के लिए বসতে বসতে রাত प्रसाद बनाया। বেজে গেছে, মা একটু সংসার रात করেছে, মা ওই को 10 बज गया, माता वहीं पे जहाँ प्रसाद बना रही थी वहीं पर ऐसे सो पड़ी। চাকুটা দিয়ে तो क्या किया उसने, चाकू से माता के वक्षस्थल को काट दिया और ওই যে বললাম वो निकाल लिया। যে মেয়েটা তলায় পড়েছে তাকে দিতে হবে। तो उस लड़की के पास जाने के लिए हाथ में रख के जाने लगा माता का कलेजा, হৃদয়টাকে এইভাবে নিয়ে চলছে, हृदय लेके चलने लगा। ওই মেয়েটাকে দিতে হবে। হঠাৎ করে दृष्टि बेटा के ऊपर है। পাথর इतने में क्या हुआ कि पैर में एक पत्थर लग गया। দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওই যে হাতের মধ্যে যে কলেজা ছিল, মায়ের कलेजा ছিল, तो उसके हाथ में जो माता का कलेजा था वो नीचे गिर गया, 2 टुकड़ा हो गया। হাত থেকে পড়ে গেছে। আর ওই আঙ্গুলের মধ্যে পায়ে যে বুড়ো আঙুল বলে না, আঙুল, আর ওর মধ্যে পাথরের চোট লেগেছে, पत्थर से चोट लग गया, একটু রক্ত उस बच्चे को चोट लग गई और সঙ্গে खून निकलने लगा। কলেজাটা तो साथ में ही वो कलेजा बोलने लगा माता का, 2 टुकड़ा जो हो गया था। শব্দ বের হয়ে গেল, বললেন बोलता है कि बेटा তোমার পায়ে খুব চোট, तुम्हारे पैर में चोट तो नहीं लगी? আমি আমার অঞ্চলটা দিয়ে অঞ্চলটা দিয়ে তোমায় ব্যান্ডেজ করে দিই। माता कह रही है कि तुम्हारे पैर में लगा देता हूँ। মায়ের যে স্নেহ মমতা इसलिए माता का जो स्नेह ममता प्रीति है उसकी कोई पूर्ति नहीं कर सकता, কারোর সঙ্গে তুলনা করা যায় না। उसकी तुलना नहीं की जा सकती। माता का जो प्रेम है, আমরা যতই কিছু বলি না কেন, মাতৃপ্রেম, মায়ের যে माता का जो प्रेम है, माता का जो ऋण है, वो कभी भी हम समाप्त नहीं कर पाएंगे, उड़ नहीं हो सकते। हम कहेंगे हम मातृ ऋण पितृ ऋण, एकमात्र उपाय क्या है, गतो मुकुंद परिहत्य कर तुम, एकमात्र मुकुंद के चरण में समर्पित करते हैं, तब हम इनसे मुक्त हो सकते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।